Good morning, everyone, and welcome to the second day of Life Expo. Since last yesterday, we are talking about the new normal that everybody, every human has entered this new normal of life. So today's day is dedicated to the other aspect of new normal, which we call Ayurveda, yoga, wellness. All these kind of techniques, which I would say we have forgotten, or maybe we are not that habitual of. So just to before we start the session, I just give you an example. Like this is I'm holding a glass of water and I'm holding this tulsi earth with me. So I'm gonna drop 2-3 drops and I'm gonna drink this water. But rest, I don't know how this is gonna affect me. So to get more clarity on what Ayurveda holds for us as a normal human being, as a common man, I would like to introduce. Our key panelist and guest speaker for today, Dr. Sunil Vashisht. And just giving you brief introduction of Dr. Vashisht, he is BA MS from Jammu University 1981 and MD EY Kaya Chikitsa IMS BHU Varanasi in the year 1984. PhD Hriday Rog IMS BHU Varanasi 1987. Life member International Society for Heart Research, consultant physician and cardiologist Ayurveda, Dr. Vashisht Ayurveda Center and Heart Clinic Jammu 1988 onwards, and also a co-founder and managing director for Dr. Vashisht Ayu Remedies based out in Ahmedabad, Gujarat. So these are few words. I'm sure I cannot describe him, throughout this whole session. So good morning and welcome, Dr. Vashisht, to this show. And today's objective is to understand this new normal of Ayurveda directly from you, because you are into this field since long and you are working in this field. You have studied this field, so you know the in-depth knowledge about about this subject, because Ayurveda is something we are hearing, and I think COVID has opened the doors to Ayurveda for some time for us while sitting at home. So we are hearing a lot of things like Kada is there, which is increasing our immunity. While there is no allopathic medicine, still, companies are announcing, but no final cure is there. So over to you for the opening remarks, sir. Free to share your suggestion in English or Hindi or Punjabi, whatever. Over to you, sir. Thank you so much. Thank you, Sachin ji. At the very outset, I thank you and other organizations for inviting us to take part in this expo. मैं समझता हूं कि यह सही समय है जब हम सब लोगों को आयुर्वेद के बारे में समझना चाहिए. तो जो आपको मैं थैंक्स दे रहा हूं, सर आई थिंक आप म्यूट पे चले गए. अनम्यूट कीजिए और वीडियो भी आपका ऑफ हो गया. एक अनम्यूट और कर लीजिए सर. Is it fine now? Yes, clear, sir. Sorry, I don't know how it happened. No problem, I did sir. not do it. इस समय ह्यूमैनिटी क्रॉस रोड्स पे खड़ी है और कोरोना ने इस बात को सिद्ध कर दिया है. ये सही समय है कि जब हम एक बार अपनी हर चीज को रीअसेस करें. द वे द वर्ल्ड हैज बीन हेडेड फॉर, किस तरफ हम जा रहे थे और हमें किस तरफ जाना चाहिए. कोरोना ने हमें मजबूर कर दिया है इस बात को सोचने के लिए. आयुर्वेद के बारे में सच पूछिए तो लोगों का जो नॉलेज है, जो अवेयरनेस है, वो बहुत सतही है, सुपरफिशियल है. इसको अब जरूरत हो गई है और जरूरत से ज्यादा मजबूरी हो गई है दुनिया की ये जानने के लिए कि एक्चुअली आयुर्वेद क्या है. तो विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स मैं बिल्कुल क्लियर कट कुछ बातें आप लोगों के साथ करूंगा. जो आई डोंट नो हु द पार्टिसिपेंट्स आर, लेकिन मुझे इतना पता है कि बहुत सारे आयुर्वेद डॉक्टर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो उनके लिए तो कोई नई बात नहीं होगी. बट फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई सर्टेन पॉइंट्स एंड आई डिस्कस द होल थिंग इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आयुर्वेद क्या है. आयुर्वेद क्या गोली, जड़ी बूटी, चटनी है?
द आंसर इज नो। आयुर्वेद एक लाइफ साइंस है और हम भारतीयों को इस बात का एक गौरव होना चाहिए कि विश्व के अधिकांश भूखंडों में जब अंधकार छाया हुआ था, अज्ञान छाया हुआ था, उस समय हजारों वर्ष पूर्व इस देश में एक बहुत बड़ी सभ्यता पनप रही थी और उसमें आयुर्वेद फुल फ्लैजेड सिस्टम ऑफ लाइफ, एक लाइफ साइंस जो है, विश्व के इस भूखंड को स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा था। और वो भी ऐसे नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ इटर्नल प्रिंसिपल्स। और वो सबसे बड़ा प्रिंसिपल आयुर्वेद का क्या है, ये हम सबको जानना जरूरी है। आयुर्वेद विश्व की एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है, ऐसा जीवन विज्ञान है जो व्यक्ति को यूनिवर्स के साथ ट्यून इन करने की सलाह भी देता है और उसकी टेक्निक भी बताता है। एक बहुत सिंपल कोटेशन है, यथा लोके तथा पिंडे, संस्कृत में है। इसका मतलब क्या हुआ? लोक होता है यूनिवर्स। Whatever is happening in the universe is getting reflected inside the bodies of all the living creatures. Whatever is happening, जो कुछ दुनिया में हो रहा है, जो कुछ यूनिवर्स में हो रहा है, वो सारे का सारा हमारे सबके शरीरों के ऊपर प्रभाव डालता है। आयुर्वेद इस बात को कहने वाला शायद एकमात्र जीवन विज्ञान या लाइफ साइंस या मेडिकल साइंस है। और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन जो है, इट इज अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन। बात को समझिए, मॉडर्न मेडिसिन इज अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन, नेचुरोपैथी इज अ सिस्टम ऑफ हेल्थ, whereas आयुर्वेद इज अ सिस्टम ऑफ लाइफ। ये एक लाइफ साइंस है और ये जन्म से पूर्व से समय शुरू होकर मृत्यु तक पूरे हर एस्पेक्ट को डील करता है। आयुर्वेद वो है, उसमें हेल्थ भी आती है, उसमें डिजीज भी आती है, एंड डिजीज इज जस्ट अ पार्ट ऑफ आयुर्वेद। मैनेजमेंट ऑफ डिजीज इज जस्ट अ पार्ट। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि आयुर्वेद अगर इतना इफेक्टिव था तो क्यों ऐसा हुआ कि आज आयुर्वेद एक प्रायोरिटी सिस्टम ऑफ मेडिसिन या सिस्टम ऑफ हेल्थ नहीं है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैंने बताया कि हजारों वर्ष पूर्व जब भारत सोने की चिड़िया थी तो आयुर्वेद पूरी तरह फुल फ्लैजेड सिस्टम ऑफ लाइफ था, सिस्टम ऑफ मेडिसिन था। लेकिन बाद की घटनाओं ने, जिस समय इस सिस्टम को डेवलप होना चाहिए था, उस समय भारत के लोग एक दूसरे की पीठ में छुरा भोंक रहे थे, विकास रुक चुका था, बाहर के लोग आते जा रहे थे, बाहर की विचारधाराओं ने भारतीय विचारधारा को रोक दिया था, विकास नहीं हो सका। और उसका परिणाम अल्टीमेटली ये हुआ कि जब पश्चिम में विकास शुरू हुआ, इससे 400-500 साल पहले विज्ञान शुरू हुआ, उस समय तक हम लोग पूरी तरह दरिद्र हो गए थे भारतवासी। हमारे यहाँ कोई रिसर्च नहीं हो रहा था और 400-500 साल में विश्व और खास करके पश्चिमी दुनिया और मॉडर्न मेडिसिन उस जगह पहुंच गए जहां पे कभी आयुर्वेद हो सकता था अगर इस प्रकार की प्रगति भारत में होती, लेकिन नहीं हुई। और उसका परिणाम यह हुआ कि भारत का आयुर्वेद भारत में ही आज दूसरे दर्जे की चिकित्सा पद्धति बन के रह गया। तो इसमें बहुत सारे लोगों का दोष है, लेकिन समय दोषारोपण का नहीं है। समय है ये रीथिंक करने का कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी रेलेवेंस क्या है आज की दुनिया में। क्या आयुर्वेद रेलेवेंट है? तो हमारा मानना है कि रेलेवेंट ही नहीं है। आयुर्वेद आज की दुनिया में इंडिस्पेंसेबल होता जा रहा है और कोरोना ने इस बात को सिद्ध कर दिया। तमाम विकास के बावजूद, तमाम एडवांसेस के बावजूद मॉडर्न मेडिसिन हाथ खड़े करके खड़ी हो गई ये कहने के लिए कि कोरोना का हम कुछ नहीं कर सकते। और जैसा अभी अभी कहा गया कि आयुष काढ़ा दिया गया, भारत सरकार को भी आना पड़ा, मॉडर्न मेडिसिन को भी अल्टीमेटली इधर आना पड़ा। आयुर्वेद का वो आयुष काढ़ा इतना प्रचलित हो गया कि करोड़ों लोग उसको ले रहे हैं। और आज
मुझे लगता है इतिहास में पिछले 400-500 साल में पहली बार हम उस जगह, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़े हैं जहां आयुर्वेद को लोगों ने सीरियसली लेना शुरू किया है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इससे पहले 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ और 15 अगस्त 2020 तक अगर देखा जाए तो मॉडर्न मेडिकल रिसर्च या एलोपैथिक रिसर्च पे जो पैसा खर्च किया गया और जो आयुर्वेद की रिसर्च पे खर्च किया गया, उसको देखने की जरूरत है। आप देखिए, मॉडर्न मेडिकल रिसर्च में मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि इसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत है। एपिडेमियोलॉजी में जरूरत है, रोगों का क्या कैरेक्टर रहता है वो जानने की जरूरत है कि भारत के किस भाग में कौन सा रोग होता है, कौन सा कम है, कौन सा ज्यादा है, किस एज में, कौन से किस जेंडर में रोग ज्यादा होते हैं, कम होते हैं। लेकिन अदर देन दैट, मैं प्रश्न करता हूं आपके इस मंच से कि जितना पैसा एक गरीब टैक्स पेयर का भी मॉडर्न मेडिसिन की रिसर्च में खर्च किया गया, उससे भारत में कितना पैसा आया, हम क्या एक्सपोर्ट कर सके। ये एक्सपो है, हम इसमें एक्सपोर्ट की बातें करेंगे कि हम भारत जो विश्व गुरु रहा है वो विश्व को क्या दे सकता है। मॉडर्न मेडिसिन में कितने टेकर्स हैं भारत में हुई रिसर्च को लेने वाले। मुझे लगता है कि कोई बहुत सारे दरिद्र गरीब देशों को छोड़ दीजिए, कोई लेने वाला नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में भारत आज भी विश्व गुरु है। आयुर्वेद के द्वारा आज भी भारत विश्व को बहुत कुछ दे सकता है। लेकिन क्या वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार से न के बराबर रिसर्च पे आयुर्वेद में पैसा खर्च हुआ है, क्या उसके बेसिस पे हम विश्व की जरूरतों को, जो स्वास्थ्य संबंधी चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उनको पूरा कर सकते हैं? नो। हमें जरूरत है अपना आउटलुक बदलने की। और जब मैं हमें की बात करता हूं तो उसमें भारत सरकार भी आती है, उसमें फार्मा इंडस्ट्री भी आती है, उसमें आयुर्वेद की फार्मा इंडस्ट्री भी आती है, और आम आदमी भी आता है, और आयुर्वेद के चिकित्सक और वैज्ञानिक भी आते हैं। एक दोबारा से रीथिंकिंग की जरूरत है। हम सोचें, विचार करें कि विश्व आज किस जगह खड़ा है, कितनी पुरानी मान्यताएं खत्म हो गई, कितने सारे विश्वास टूट गए। जिस मॉडर्न मेडिसिन के सहारे दुनिया चल रही थी, वो मॉडर्न मेडिसिन खोखला सिद्ध हो गई और लाखों लोग मौत के मुंह में चले गए। इसलिए ये वो समय है जब सत्ता में बैठे लोगों के साथ साथ वैज्ञानिकों को भी इस बात को समझना चाहिए कि अब मॉडर्न मेडिसिन की रिसर्च में किए गए को दिए जाने वाले बजट में एक ड्रास्टिक कटौती की जाए और वो सारा पैसा आयुर्वेद की रिसर्च में लगाया जाए, ताकि वर्तमान समय में और आने वाली दुनिया में जो स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां हैं, उन सब चुनौतियों को हम प्रोएक्टिवली सॉल्व करने का प्रयास करें। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन बीइंग्स की टेंडेंसी, और खास करके भारत में, रिएक्टिव रहती है। समस्या होती है, हम समाधान के लिए फिर फंबल करते हैं, इधर उधर भागते फिरते हैं। ये गलत प्रॉब्लम है, इसके कारण बहुत लॉस होता है। और सबसे अनफॉर्चुनेट यह है कि इससे ह्यूमंस का लॉस होता है, लाखों लोग बेमौत मारे जाते हैं। कौन जिम्मेदार है? सरकारें जिम्मेदार हैं, वैज्ञानिक जिम्मेदार हैं, चिकित्सक भी जिम्मेदार है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जिम्मेदार है। एक नए सिरे से प्रोएक्टिव अप्रोच के द्वारा वर्तमान और आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को सामने रखकर आयुर्वेद को दोबारा से एनालाइज करके इस पे रिसर्च करने की जरूरत है, ताकि हम दुनिया को वो दे सकें जो दुनिया हमसे चाहती है। इंजीनियर अपना काम करता है, किसान अपना काम करता है, बिजनेसमैन अपना काम करता है, उनके अपने अपने काम है। लेकिन जो काम एक चिकित्सक का या चिकित्सा वैज्ञानिकों का है, वो काम उन्हीं का होने वाला है। इसकी अकाउंटेबिलिटी उन्हीं को वहन करनी पड़ेगी, उन्हीं को
इन्हीं सब चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को आगे बढ़कर कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि इस प्रकार से, जिसको कॉट अनअवेयर्स कहते हैं, दुनिया अपने तरीके से आंखें बंद करके एक इनर्शिया में घूमे जा रही थी। किसी को पता नहीं था दिसंबर लास्ट 2019 तक के क्या हो जाना है। और जैसे ही जनवरी आती है, दिसंबर लास्ट से शुरू हो गया, उसके बाद दुनिया बदलती जा रही है। और हमारा विश्वास है द वर्ल्ड विल नेवर बी द सेम आफ्टर 2020। विश्व के इतिहास को दो भागों में बांटा जाएगा, प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना। और प्री कोरोना में जो जीने का तरीका था, काम करने का तरीका था, वो कभी भी दोबारा पूरी तरह से पोस्ट कोरोना पीरियड में नहीं हो सकता है। इस बात को हमें रियलाइज करना पड़ेगा, पूरी जिम्मेदारी से हमको समझना पड़ेगा कि हम किस प्रकार की अपनी पॉलिसीज बनाएं जिसके तहत एक आम आदमी, आम ह्यूमन बीइंग्स इस प्रकार की समस्या में ना फंसे। कौन कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं हमारे सामने आज हैं और भविष्य में हो सकती हैं, इनको अच्छी तरह से जानने की जरूरत है। हम अनभिज्ञ हैं, अनअवेयर है, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन बहुत बार हमें इस चीज का रियलाइजेशन नहीं होता है। और यही कारण है कि हम लोग सोए रहते हैं। हम लोग आंखें खोल के सोने वाले लोग हैं, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। लेकिन हमें एक बात को और समझना पड़ेगा कि आंखें खोल के सोने का यह सिलसिला अब बंद करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 100 बरस में, मेरे इस वक्तव्य को गौर से सुनिए मैं क्या कहने वाला हूं, पिछले 100 बरस में मानव ने, ह्यूमन बीइंग्स ने प्रकृति का जितना बलात्कार किया है उतना इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। 100 बरस में, पिछले 100 बरस में नेचर का जिस प्रकार से ब्रूटली रेप किया गया है वो पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ। और नेचर के अपने चेक्स एंड बैलेंसेस के तरीके होते हैं, नेचर अपने तरीके से रिटेलिएट करती है। कोरोना एक उसमें से बहुत छोटा सा उदाहरण है। हमें और बड़ी हेल्थ चैलेंजेस के लिए, और संभवतः ईश्वर ना करे दूसरी नेचुरल कैलामिटीज के लिए भी आपको तैयार करना पड़ेगा, जिस प्रकार से हमने मैन हैंडल किया है पिछले 100 बरस में नेचर को। मानवता की सपोर्ट करने वाली विचारधाराएं जो अपने आप को कहती हैं, लेकिन हकीकत में मानव विरोधी विचारधाराओं ने इतना जोर पकड़ लिया है कि वो अपने आप को मजबूत करने के लिए, दूसरों को पछाड़ने के लिए, उन्होंने इतना ज्यादा नेचर की तबाही की है कि आज वो इकोसिस्टम पूरा बदल गया है। और आज कोरोना हुआ है, ये अगर किसी कंट्री ने की चाल है अलग बात है, हो सकता है आगे कुछ और नेचुरली चीजें, इस तरह की समस्याएं आए, लेकिन उन समस्याओं को के समाधान के लिए हमें आज अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें फिर वही आयुर्वेद के सिद्धांत पे जाना पड़ेगा, यथा लोके तथा पिंडे, यानी whatever is happening in the universe is being reflected in the human beings or any living being for that matter। तो हमें ह्यूमन बीइंग्स को खास तौर पे मजबूत बनाना पड़ेगा, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, जिसको आयुर्वेद में ओजस कहते हैं। और इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका आयुर्वेद की औषधियां भी हैं। औषधियां एक तरीका है, सब कुछ नहीं है। हम किस तरह से सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं, काम करते हैं, बिहेव करते हैं, ये सब कुछ हमारे इम्यून सिस्टम की हेल्थ को डिटरमिन करता है। तो आयुर्वेद को अगर होलिस्टिकली हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये एक जीवन विज्ञान है,
ये पूरे लाइफ के हर एक पहलू, हर एक एस्पेक्ट को डील करता है। और अगर हम उसे अपनाना शुरू करते हैं तो व्यक्ति, इंडिविजुअल पर्सन, वो मजबूत होगा, उसकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। और जैसा कहा गया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कोरोना इस बात को बता रहा है, चीख चीख कर कह रहा है कि आने वाले समय में वही लोग जिंदा रहेंगे जो फिटेस्ट होंगे। आज भी हमें पता लग रहा है कि जिन लोगों ने, जिनकी इम्यूनिटी किसी भी कारण से कमजोर थी, किसी क्रॉनिक डिजीज के कारण कमजोर थी, माल न्यूट्रिशन के कारण कमजोर थी, अल्कोहलिक्स थे उनके कारण कमजोर थी, जो सिगरेट स्मोकिंग करते थे उनके कारण उनके लंग्स की इम्यूनिटी कमजोर थी, ऐसे लोगों पे कोरोना का इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। तो क्या ये नेचर का तरीका है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में, वो जो कमजोर है उसको वो हटा देती है। लेकिन क्या हम हाथ पे हाथ धरे रखकर कुछ लोगों को कमजोर रहने दें? नहीं, हमें आज जरूरत है सारी दीवारें तोड़कर, सभी प्रकार की विचारधाराओं को पीछे छोड़कर, ह्यूमैनिटी की विचारधारा को सामने रखकर विश्व में हर एक ह्यूमन बीइंग की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। और उसके लिए जो कुछ विज्ञान कहता है, हम आंखें बंद करके केवल आयुर्वेद की बात करें ऐसी बात भी नहीं है। विज्ञान ने भी उन्नति की है, प्रगति की है। वैज्ञानिक तौर पे जो सिद्ध थॉट्स हैं उनको हम अपनाएं, आयुर्वेद के जो शाश्वत, जो इटर्नल जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अपनाएं और व्यक्ति की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने का प्रयास करें। ये पहला होना चाहिए। वो पूरी तरह से लाइफस्टाइल, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, कोरोना से वो लोग ज्यादा मरे जैसे मैंने कहा जिनकी इम्यूनिटी कमजोर थी। लेकिन इम्यूनिटी के अलग अलग तरीके होते हैं। जब इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं मोटे तौर पे 3 होते हैं। किसी की इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है जिसको हम कहते हैं पुअर इम्यूनिटी या इम्यून डेफिशिएंसी, आयुर्वेद में इसको ओजक्षय कहते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों को अलग अलग इन्फेक्शंस अदरवाइज जो दूसरे लोगों को नहीं भी अफेक्ट करें, और आप लोग जानते हैं कि मान लो डायबिटीज के कारण हो या एड्स के कारण हो या किसी और चीज के कारण हो, अगर इम्यूनिटी कमजोर होती है तो इन्फेक्शंस बार बार लगती हैं। और विशेषकर जो वायरल इन्फेक्शंस हैं वो तो ज्यादा होती है। तो इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। फिर एक और ग्रुप ऑफ डिजीजेस जो बहुत ज्यादा प्रचलित होता जा रहा है। 40-50 साल पहले ऐसा माना जाता था कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बहुत कम होते हैं, 5-10-15 डिजीजेस थी 40-50 साल पहले जो मानी जाती थी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। आज ऐसे रोगों में की गिनती में 100 से ज्यादा डिजीजेस हो गई हैं। और ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है? बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम अपनी ही बॉडी को अटैक करता है और कई प्रकार के असाध्य, इनक्योरेबल, लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीजेस पैदा करता है, जिनमें से एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस आती है, सोराइसिस भी उसी में से आती है, एसएलई होती है, फाइब्रोमाइल्जिया तक एक डिजीज है वो आ रही है। तो ये जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा कॉमन होते जा रहे, प्रेवलेंट हो रहे हैं, उनको देखिए। और इसी का एक वेरिएंट एलर्जिक डिसऑर्डर्स है। व्यक्ति का इम्यून सिस्टम जरूरत से ज्यादा जोर से रिएक्ट करता है कुछ जो हार्मलेस सब्सटेंसेस हैं। इन सब चीजों में बेसिकली इम्यूनिटी इन्वॉल्व है। तो चाहे इम्यून सिस्टम की बीमारियां हैं, एलर्जिक बीमारियां हैं, बार बार होने वाली इंफेक्शन है, सो मच सो कि कैंसर तक माना जा रहा है कि इम्यून सिस्टम हैज अ मेजर रोल टू प्ले। जिन लोगों को मैलिग्नेंट डिजीजेस होती हैं, कैंसर होता है, कहीं ना कहीं उनका इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है। और इसके बाद बहुत सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स,
उनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कहा जा रहा है, क्योंकि आज पिछले 100 बरस में इंडस्ट्रियलाइजेशन कितनी हुई। इतिहास ने इतनी पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं देखी थी जितनी पिछले 100 बरस में हुई। अर्बनाइजेशन कितनी हुई, इकोसिस्टम कितना डिस्ट्रॉय हुआ, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं। इस सब का इंपैक्ट ह्यूमन बींग्स पे पूरी तरह से हो रहा है। जितना बॉडी पे हो रहा है उतना ही माइंड पे हो रहा है। लेकिन एक बात पे गौर करिए, भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि पहले सतयुग था, फिर त्रेता, फिर द्वापर और उसके बाद कलयुग। सतयुग में लोग बहुत सीधे हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे जैसे विकास हुआ लोग अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करते गए। लेकिन मानव का जो मन का विकास है वो समय के साथ साथ होता गया। ये युगों का जो विभाजन है वो यही बात बताता है। लेकिन पिछले 100 बरस में जिस प्रकार से पूरा परिवेश बदल गया है, ह्यूमन माइंड अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पा रहा है। परिणाम क्या हो रहा है? मैल एडेप्टेशन। मैल एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? जैसी परिस्थितियां हों उस प्रकार से अपने आप को ढाल लेना, इसको कहते हैं एडेप्टेशन। और व्यक्ति की उस योग्यता को कहते हैं एडेप्टेबिलिटी। लेकिन ह्यूमन माइंड के एडेप्टेबिलिटी की, एडेप्टेशन की एक सीमा है। हजारों वर्षों में ह्यूमन माइंड इतना तेजी से इतने बदलावों को एक्सपोज नहीं हुआ था जितना पिछले 100 बरस में हुआ। परिणाम यह हो रहा है कि ह्यूमन माइंड इज नॉट एबल टू अडॉप्ट इटसेल्फ विद द फास्ट ग्रोइंग चेंजेस हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। और रिजल्ट बहुत सारी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स। एक रोग के बारे में आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, उसका नाम है फाइब्रोमाइल्जिया। ये बहुत बाद में टर्म आई है, 1990 के लगभग। उससे पहले इसको अलग अलग नामों से कहा जाता था। इस फाइब्रोमाइल्जिया में पेशेंट को पूरे शरीर में बहुत दर्दें होती हैं, लेकिन दर्दों के साथ साथ उसके मन के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। डिप्रेशन भी होती है, एंजाइटी भी होती है, बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं। और इसके साथ साथ ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स भी होती हैं। कुछ लोगों को रिमेटॉइड आर्थराइटिस भी होती है, कुछ को डायबिटीज हो जाती है। आप इस बात के पे गौर कर रहे हैं मैं जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूं? मन में असर हो रहा है। ह्यूमन माइंड अडेप्ट नहीं कर पा रहा बदलती परिस्थितियों के साथ। उसके साथ साथ ब्रेन के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। पूरी न्यूरोसाइकोलॉजी बदलती जा रही है। उसके साथ साथ जो इम्यून सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। और फाइब्रोमाइल्जिया जैसी एक भयंकर बीमारी, बहुत तकलीफ देने वाली बीमारी हमारे देखते देखते इतनी प्रेवलेंट होती जा रही है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि हम लोग बाय डिफॉल्ट हम लोग रिएक्टिव लोग हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर मोस्टली रिएक्टिव स्पीसीज। जब कुछ होगा तो हम उसके ऊपर एक्ट करें। हमारे समाज में किस प्रकार से दीमक की तरह फाइब्रोमाइल्जिया बढ़ता जा रहा है, जो बता रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। हम बीमार समाज पैदा कर रहे हैं। हम बड़े बड़े हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से इतनी रिसर्च करने के बाद उस तरफ हम क्या सोच रहे हैं कि फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट की दर्दें कौन सी दवाई से दूर की जाएंगी? क्या ये ट्रीटमेंट है? नो, द ट्रीटमेंट इज what are the factors that are resulting in the production of fibromyalgia, generation, causation of fibromyalgia. फाइब्रोमाइल्जिया एक एग्जाम्पल है। डायबिटीज बढ़ती जा रही, कैंसर बढ़ता जा रहा,
जैसे मैंने कहा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, वायरल इंफेक्शंस बढ़ती जा रही, और एक समस्या और है जो बढ़ती जा रही, और वो समस्या क्या है? वो समस्या है बैक्टीरियल रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा, ह्यूमन बींग्स की जो अप्रोच है वो लार्जली रिएक्टिव होती है, इंफेक्शन होती है। आप एक व्यक्ति को इंफेक्शन हुई, बैक्टीरियल इंफेक्शन हुई, एंटीबायोटिक्स दी गई, दोबारा इंफेक्शन हुई, फिर उससे बड़ी एंटीबायोटिक दी गई, तीसरी बार इंफेक्शन हुई, उससे स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक्स दी गई, और यहां तक कि दक्षिण एशिया को, साउथ एशिया को दुनिया में बहुत इस दृष्टि से देखते हैं कि ये एलोपैथिक दवाइयों की एक डंपिंग ग्राउंड है। जो चीज कहीं नहीं चलती, जिसका कोई टेकर नहीं है बाकी दुनिया के हिस्सों में, उसको अगर डंप करना है, बेचना है, तो दक्षिण एशिया में चले जाइए। यहां के डॉक्टर्स रेकलेस यूज करते हैं एलोपैथिक दवाओं का, रेकलेसली, केयरलेसली, विदाउट विदाउट थिंकिंग फॉर द रियल इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट। जो मेडिसिन आए वो देते जाते हैं, और उसमें से मिस यूज हुई है एंटीबायोटिक्स यूज्ड अगेंस्ट द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इंफेक्शंस। रिजल्ट क्या हो रहा है? आज बहुत सारे बैक्टीरिया, दे हैव गॉन रेजिस्टेंट टू बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स। सोल्यूशन क्या है? मॉडर्न मेडिसिन, आप कुछ भी देख लीजिए, मैं सर्जरी की बात नहीं करता, और सर्जरी मॉडर्न मेडिसिन को अगर मिली है तो दो विश्व युद्धों की देन है। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं होती तो मॉडर्न मेडिसिन की सर्जरी आज भी बहुत ज्यादा प्रिमिटिव होती। दो विश्व युद्धों में इतना सारा चैलेंजेस आए कि मॉडर्न मेडिकल सर्जरी एडवांस हो गई, फाइन। फिर उसी के साथ कुछ मेडिसिन के ऊपर भी, ड्रग्स के ऊपर मॉलिक्यूल्स पे काम हुआ, फाइन। लेकिन वो जो काम हुआ मॉडर्न मेडिकल रिसर्च में, वो ज्यादातर क्या था? सप्रेसिव था, इरेडिकेटिव नहीं था। Those medicines were not aimed at eradicating the disease processes. Those medicines, those drugs, those molecules were directed at giving relief or improvement, symptomatic improvement to the patients largely. रिजल्ट क्या हो रहा है? आज मॉडर्न मेडिसिन, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ स्टेटमेंट देने जा रहा हूं, मॉडर्न मेडिसिन हैज रीच्ड अ ब्लाइंड एले, ब्लाइंड एंड। एक मॉलिक्यूल अगर किसी कंपनी को मार्केट में उतारना है, नया मॉलिक्यूल, उसमें $10 बिलियन खर्च होते हैं, और $10 बिलियन खर्च करने के बाद अगर कंपनी को यह पता चले कि ये मॉलिक्यूल इफेक्टिव नहीं है, या इसमें कोई सीरियस साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है, तो वो मेडिसिन, वो मॉलिक्यूल मार्केट में लॉन्च नहीं हो सकता। तो $10 बिलियन खर्च करने वाली कंपनी की कमर टूट जाती है। तो आज क्या हो रहा है? नो न्यू मॉलिक्यूल्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट। बस जो पुराने हैं उनको थोड़ा बहुत चेंज करते जाइए, इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए कि रोग इरेडिकेट नहीं किया जाना चाहिए। बस इस तरह की स्थिति एलोपैथिक मेडिकल फार्मा कंपनियों की है। अब दूसरी नजर आप डालिए आयुर्वेद पर। 10,000 से ज्यादा, उससे भी ज्यादा, 40,000 से भी ज्यादा कुछ हर्ब्स होंगी, लेकिन मैं कहता हूं 10,000 से ज्यादा हर्ब्स तो वेल नोन है जिनका मेडिसिनल यूज होता है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि
आयुर्वेद आज भी एक अनएक्सप्लोर्ड फील्ड है। आयुर्वेद आज भी एक अनएक्सप्लोर्ड फील्ड है, एक वर्जिन फील्ड है, जिसकी जितना इसको एक्सप्लोर किया गया है वो इतना कम है कि एक ग्रेट बॉडी ऑफ आयुर्वेदा विजडम इज येट टू बी एक्सप्लोर्ड। आज हम अगर आयुर्वेद पे ध्यान देते हैं, सरकारें, साइंटिस्ट और फार्मा कंपनियां अगर वो एक नई अप्रोच के साथ विश्व के सामने आने वाली बड़ी बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए अगर हम आयुर्वेद के पास जाते हैं और इसकी अभी तक अनएक्सप्लोर्ड मेडिसिन और प्रैक्टिसेस के ऊपर काम करते हैं, तो हमारा पूरा विश्वास है कि विश्व में आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के अधिकांश स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान आयुर्वेद देने की क्षमता रखता है। लेकिन शर्त यह है कि हम ईमानदारी से आयुर्वेद को एक्सप्लोर करें। मैं आयुर्वेद चिकित्सक हूं, वैद्य हूं। मैं इस जिम्मेदारी से अपने आप को मुक्त नहीं कर रहा कि आयुर्वेद अगर आज अपने ही देश में दूसरे दर्जे की चिकित्सा पद्धति बन गया है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैं भी हूं। आयुर्वेद जो चिकित्सा का समाज है, कम्युनिटी है, वो भी है, लेकिन जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां थी वो इतनी बड़ी थी कि वो सामान्य व्यक्ति के नियंत्रण से परे थी, इसलिए हम लोग उसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। कुछ हद तक आयुर्वेद की फार्मा इंडस्ट्री भी इसके लिए जिम्मेदार है। आप लोगों में से काफी लोगों को पता नहीं होगा कि भारत की कुछ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल कंपनियां 60-70 साल से भी पुरानी है, कुछ एक 100 साल से भी पुरानी है, और मुझे लगता है कि कुछ एक शायद 150 साल से भी ज्यादा पुरानी होंगी। ऐसी कंपनियों को शेखी बघाड़ने में बड़ा मजा आता है कि हम 150 साल से, 125 साल से, 100 साल से काम कर रहे हैं। मैं उनसे पूछ रहा हूं, आपके यहां रहते हुए इसी भारत में आप थे, आपके देखते देखते आयुर्वेद मेन स्ट्रीम सिस्टम ऑफ मेडिसिन में था, और आपके देखते देखते वो दूसरे दर्जे पे चला गया, एक सेकंड चॉइस बन गया। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि आयुर्वेद की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आज भी पुराने ट्रेडिशनल कन्वेंशनल तरीके से सोच रही है, क्योंकि इनोवेशन की आज भी आयुर्वेद की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कमी है। कारण बहुत हो सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इतने बड़े रिसोर्स को टैप नहीं कर पाई है, इसका दोहन नहीं कर पाई है। ये एक कड़वा सच है। फिर क्या किया जाए? पैराडाइम शिफ्ट होनी चाहिए। आयुर्वेद की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। जिस 5000 साल पहले जिस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता था, 21वीं शताब्दी के अब तीसरे दशक में उस प्रकार से ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। बहुत सारा पानी गंगा जी में बह गया है, चीजें बहुत बदल चुकी हैं। आज के रोगी, आज के कस्टमर, रोगी जो अब कंज्यूमर बन गया है, आज के कंज्यूमर और कस्टमर की जरूरतें, उसकी नीड्स, उसकी डिमांड्स, डिजायर्स बदलती जा रही हैं। कुछ उसकी इच्छा से हैं और कुछ उसकी मजबूरी है, क्योंकि लाइफस्टाइल, जीने का तरीका बदलता जा रहा है। लाइफ जितनी फास्ट होती जा रही है, उसे जिंदा रहने के लिए, अपने और परिवार के भरण पोषण के लिए आज के मानव को जिस प्रकार से जिंदा रहना है,
जितनी मेहनत करनी है उसकी जरूरतों के मुताबिक दवाई बना रहे हैं हम 5,000 साल पुराने तरीके से, और ट्रीट कर रहे हैं हम 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक में, किसी अब आने वाले 1-2 साल में तीसरे दशक में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। और जो कुछ एक थोड़ी किसी ने इनोवेशन किया है, कुछ कंपनियों ने किया भी था, सच पूछा जाए तो वो एक कॉस्मेटिक था, वो एक कॉस्मेटिक इनोवेशन थी, एक्चुअली इनोवेशन नहीं थी, वो बस थोड़ी सी चेंज थी। बेसिक जो जिसको डिसरप्शन कहते हैं, जिसको एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहते हैं, वो आयुर्वेद की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नहीं कर पाई। और रिजल्ट अपने ही देश में हमारा आयुर्वेद चिकित्सक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से खुश नहीं है। वो कहता है कि मुझे वो सब दवाइयां आप क्यों नहीं देते हैं जो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स को मॉडर्न फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देती है। मेरा आयुर्वेद चिकित्सक वहां पे बिल्कुल ठीक है। हम कहीं कमजोर रह गए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को वो जो करना चाहिए था वो नहीं किया, परिणाम हमारे सामने आए। अब क्या किया जाना चाहिए? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का मैं आह्वान करता हूं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का मतलब मैं होल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। मैं उनका आह्वान करता हूं कि आयुर्वेद एक अनएक्सप्लोर्ड फील्ड है। आयुर्वेद के माध्यम से हम दुनिया को बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत सारी मेडिसिन एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वर्ल्ड क्लास मेडिसिन हो, बट वो मेडिसिन हेल्थ प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को सॉल्व करने वाली हो, वो हम दे सकते हैं और बहुत सारी मुद्रा भारत में ला सकते हैं। मैं इसलिए बिजनेस की बात करता हूं, उसके 2 रीजंस हैं। ये एक्सपो वेबिनार हो रहा है, इसलिए भी ये रेलेवेंट है। दूसरा, हम लोग भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हैं, आयुर्वेद की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हैं। हमारी भी कंपनी डॉक्टर वशिष्ठ साई रेमेडीज पिछले 12 साल से इसमें है, इसलिए मैं इंडस्ट्री की बात करता हूं। आपको ये अधिकार है पूछने का कि 12 साल से डॉक्टर वशिष्ठ आयु रेमेडीज ने क्या किया। क्या मैं केवल भाषण दे सकता हूं, प्रवचन दे सकता हूं, या कुछ हमने ग्राउंड वर्क किया? तो मेरा उत्तर है कि यस, हमने किया। और वो क्या किया वो मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले अगर आप मुझे पूछें कि डॉक्टर वशिष्ठ साई रेमेडीज को आप डिफाइन करिए, एक वर्ड बोलिए डॉक्टर वशिष्ठ साई रेमेडीज के लिए, तो मैं बोलूंगा साइंटिफिक। कैसे? आप खुद जज कर लीजिए। थोड़ा मैं कोशिश करूंगा टेक्निकली ज्यादा ना बोलूं, फिर भी मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहता हूं और बहुत इजी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आयुर्वेद में मोटे तौर पर माना जाता है कि अगर आपको कोई चूर्ण देना है, पाउडर देना है किसी हर्ब का, जड़ी बूटी का, तो उसकी डोज जो है वो 3 से 6 ग्राम तक होनी चाहिए। एक डोज की बात कर रहा हूं, वो दिन में 3, 4, 6 डोजेस दी जानी चाहिए। अब क्या होता है, अब आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं उसके बारे में देखिए, और फिर देखिए कि उनकी प्रोडक्ट साइंटिफिक है या अनसाइंटिफिक है। जिस पाउडर को 3 से 6 ग्राम की मात्रा में, चाहे आप पाउडर फॉर्म में दीजिए या कैप्सूल में डाल के दीजिए या टैबलेट बना के दीजिए, लेकिन बाई वेट वो मेडिसिन 3 से 6 ग्राम होनी चाहिए थी, वहां पे कंपनी क्या करती है, उस चूर्ण की टैबलेट बनाती है या कैप्सूल बनाती है 250 मिलीग्राम। अब 6 ग्राम देना चाहिए था, 250 मिलीग्राम का वो चूर्ण क्या करेगा?
वो अनसाइंटिफिक डोजेज है, कुछ नहीं करेगा, और अगर करेगा तो आयुर्वेद को बदनामी देगा, उसके सिवा कुछ नहीं कर सकता। दूसरा मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। सिंगल हर्ब है, मेडिसिनल हर्ब। आप लोगों ने सुना होगा आजकल अश्वगंधा बहुत यूज हो रहा है, गिलोय यूज हो रही है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तुलसी हमारे घरों में होती है वो यूज हो रही है, और भी बहुत सारी चीजें आप जानते होंगे। अगर आपको अश्वगंधा देना है, गुडुचि देनी है, गिलोय जिसको कहते हैं, तुलसी देनी है, तो इसकी डोज को रखिए 3 से 6 ग्राम। चाहे आप अकेला अश्वगंधा दीजिए, चाहे इनको मिक्स करके 2-3 को दीजिए, लेकिन डोज आपको 3 से 6 ग्राम एक डोज रखनी पड़ेगी। कंपनी क्या करती है? कंपनी करेगी 50 हर्ब्स को मिलाएगी, और 50 हर्ब्स को मिलाने के बाद चूर्ण लाएगी, उसकी टैबलेट बनाएगी, और डोज रखेगी 250, और बहुत तो बहुत 500 मिलीग्राम। अब ये बताइए, डोज भी कम, और जो औषधियां 2-3 होनी चाहिए थी ड्रग्स, वो 50 हैं। इतनी मिनिस्क्यूल डोजेज है, उसमें कोई दवाई थेरापेटिकली इफेक्टिव डोज में नहीं है। ये अनसाइंटिफिक है। तीसरा, जो मैन्युफैक्चरिंग तरीका है, मैं आपको इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहता हूं। जब देखा गया कि चूर्ण लोग नहीं ले पाते, तो क्या किया जाए? इसका सत निकाल के दिया जाए। सत कैसे निकालेंगे? मेडिसिनल हर्ब को पानी में उबालिए, गर्म करिए। जब धीरे धीरे पानी, मान लो 1 किलो लिया मेडिसिनल हर्ब को ही, उसको कूटा, 16 किलो पानी में डाला। जब 4 किलो पानी बचा तो उसको छान लिया, और फिर उसको गर्म करके उसका घन बनाया, सत्व बनाया, उसकी टैबलेट बनाई गई, कैप्सूल बनाया गया। लेकिन अब समस्या यह है कि जब उबालते हैं तो हीट पे कंट्रोल नहीं होता। किसी मेडिसिनल हर्ब को इस सिस्टम को एक्सट्रैक्शन कहते हैं, एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। अब उसमें क्या होता है कि किसी हर्ब को तो टेम्परेचर चाहिए होता है एक्सट्रैक्शन के लिए, 70 से लेकर 75 डिग्री सेल्सियस, किसी को 90 से 95, किसी को 60 से 65 या 70। अब अगर किसी हर्ब को एक्सट्रैक्शन के लिए 60 टू 70 के बीच का टेम्परेचर चाहिए, अगर आप उसको उबाल देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसके मॉलिक्यूल्स तो डिस्ट्रॉय हो गए। अब वो रिजल्ट कहां से देने वाली है? कोई रिजल्ट नहीं आएगा। खाने को दवाई खाई जा रही है, आयुर्वेद को बदनामी मिल रही है। ये अनसाइंटिफिक मैन्युफैक्चरिंग, अनसाइंटिफिक फॉर्मुलेशंस, फिर उसके बाद बना देंगे, और ऐसे बना देंगे जैसे रोगी के ऊपर एहसान कर रहे हैं। जो टैबलेट आई जिस फॉर्म में आई बना के दे दी, डिब्बियों में डाल के दे दी, उसकी टेस्टिंग नहीं किया, कुछ उसके बारे में डेटा नहीं दिया, और फिर 3 साल की एक्सपायरी लिख दी। उसके बीच में वेदर कंडीशंस और बाकी चीजों में उसकी शेल्फ लाइफ कितनी थी वो टेस्टिंग नहीं हुआ, पेशेंट ले रहा है, अल्टीमेटली कुछ नहीं हो पा रहा। ये सारी अनसाइंटिफिक मेडिसिन हैं। लेकिन हमने क्या किया, इसको साइंटिफिक तरीके से दिया डॉक्टर वशिष्ठ साई रेमेडीज ने। हमारी बहुत सारी मेडिसिन में एक हर्ब होती है, या 2 होती है, या 3-4 होते हैं, तो लेकिन वो थेरापेटिकली इफेक्टिव डोज में, क्वांटिटी में होती है, जिसमें वो काम करती है उसमें होती है। और हम देते हैं टैबलेट फॉर्म। टैबलेट फॉर्म इसलिए देते हैं कि हम साइंटिफिकली बने हुए एक्सट्रैक्ट्स यूज करते हैं। जिस हर्ब को जितने टेम्परेचर पे एक्सट्रैक्शन किया जाना चाहिए, उस पे हम उसको एक्सट्रैक्शन करवाते हैं। फिर उसके बाद बहुत थोड़ी, जितनी चाहिए उतनी हर्ब्स मिलाते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मुझे अश्वगंधा के, और वो 3 ग्राम जो चूर्ण देना है, मैं उसमें से एक्सट्रैक्ट निकालूंगा,
और वो आएगा 600 मिलीग्राम, और मैं 600 मिलीग्राम की टैबलेट बना के पेशेंट को दे दूंगा। तो अब आप पेशेंट देखिए, वो पेशेंट जो 3 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण नहीं खा पा रहा था, वो एक साइंटिफिकली मैन्युफैक्चर्ड टैबलेट, इजी टू टेक, इजी टू कैरी, जिसकी शेल्फ लाइफ भी 3 साल तक है और जिसके ऊपर किसी चीज का कोई असर नहीं होने वाला, वेल पैक्ड है, ब्लिस्टर पैकिंग है, जब हम वो देते हैं तो पेशेंट को लेने में भी अच्छा लगता है, रिजल्ट भी आता है। किसी ने फैला दिया कि आयुर्वेद की दवाइयां धीरे धीरे काम करती हैं। मैं भी पिछले 45 साल से आयुर्वेद को पढ़ रहा हूं, 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैंने किसी आयुर्वेद की बुक में, पुस्तक में, ग्रंथ में ये नहीं देखा कि किसी ने लिखा हो कि आयुर्वेद की दवाइयां धीरे धीरे काम करती हैं। धीरे काम करेंगी जब अनसाइंटिफिक दवाइयां देंगे, कम डोज में देंगे, मैन्युफैक्चरिंग जब अच्छी नहीं होगी तो काम ही नहीं करेगी, और करेगी तो बहुत धीरे करेगी। इसीलिए हमारी दवाइयां फास्ट एक्टिंग है। आज का पेशेंट फास्ट एक्टिंग मेडिसिन चाहता है, आज का पेशेंट टारगेट ओरिएंटेड मेडिसिन चाहता है, आज का पेशेंट ये नहीं चाहता मैं बहुत सारी दवाइयां लूं। तो हम क्या कहते हैं कि भाई ज्यादा दवाइयां मत लीजिए, एक ही लीजिए ना। डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट करते हैं भाई कम दवाइयां दीजिए, टारगेट पे काम करने वाली थोड़ी दवाइयां दीजिए। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम कोई बिजनेसमैन नहीं। मैं 7वीं पीढ़ी का वैद्य हूं अपने कुल में। मेरी मैडम एमडी आयुर्वेद हैं, मैं भी हूं, जैसा सचिन जी ने शुरू में इंट्रोड्यूस किया, एमडी पीएचडी हूं। आयुर्वेद हमारा धर्म है। हम एक मॉडल तैयार कर रहे हैं इस दुनिया के लिए और आने वाली दुनिया के लिए, कि आयुर्वेद की मेडिसिन अगर बनानी है तो इस तरह से बनाई जाए, इस मॉडल को फॉलो किया जाए। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बनाई जाए, दुनिया को दी जाए। उसके बाद मैं ये क्लेम नहीं करता हूं कि हम 100% रिजल्ट देंगे, लेकिन 70 to 80% तो दे ही देंगे, और 70 to 80% भी रिजल्ट कम नहीं होते। ये बात तब हम पूरे कॉन्फिडेंस से कहते हैं जब हमने चीजों को किया है, कर रहे हैं, और एप्रिसिएशन वर्ल्ड ओवर हमको अगर मिल रही है। तो मेरी सब लोगों से, सरकार में बैठे लोगों से ये प्रार्थना है, वैज्ञानिकों से प्रार्थना है, चिकित्सा वैज्ञानिकों से, विशेषकर आयुर्वेद के चिकित्सकों से मेरी प्रार्थना है, आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से प्रार्थना है, फार्मा इंडस्ट्री को मैं आह्वान कर रहा हूं कि आयुर्वेद को घिसे पिटे तरीके से एक आउटडेटेड वार्न आउट सिस्टम ऑफ मेडिसिन मत मानिए। ये लिविंग सिस्टम है पृथ्वी पर, सबसे मुझे लगता है एक ही सिस्टम है जो हजारों सालों से चला आ रहा है, और आज भी वो टक्कर दे रहा है मॉडर्न मेडिसिन को, कई जगह पछाड़ देता है। और जो ईमानदार एलोपैथिक डॉक्टर हैं इस बात को मानते हैं, हमारे साथ पर्सनल डिस्कशंस में मानते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन में देने लायक बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, और आयुर्वेद में बहुत कुछ है। तो जब इतना कुछ आयुर्वेद में है, और भारत का एक ट्रेजर है, ये खजाना है, इस खजाने को हम क्यों नहीं इसका लेवरेज करें, इसका लाभ लें, दुनिया को दें, दुनिया के हेल्थ को अच्छा करें, उनको, उनके रोगों को बचाएं, रोगों से उनको बचाएं, साथ में भारत में पैसा लाएं। क्योंकि आज की दुनिया और आने वाली दुनिया बिजनेस वर्ल्ड होने जा रही है, पुरानी सोच खत्म होते जा रही है। कोरोना में भी लोग लगे हुए हैं पैसा कमाने में, जिन कंट्रीज पे देने के लिए उनके पास बहुत है, वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। हमें इस बात की नजाकत को समझना है कि अगर हमें जिंदा रहना है एक नेशन के रूप में, अगर हमको ग्रो करना है, तो हमें अपने उन रिसोर्सेज को, टाइम टेस्टेड रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो समय की कसौटी पर हजारों साल से पूरा उतरते आ रहे हैं, आज भी वो पूरी तरह से रेलेवेंट हैं, रादर इंडिस्पेंसिबल बनते जा रहे हैं।
ऐसे रिसोर्सेज को हम पूरी तरह से टैप करें। आयुर्वेद उनमें सबसे टॉप पे है, इस बात को रियलाइज करें। हम किसी भी जगह किसी से कम नहीं है, इस बात को महसूस करें। और जिस प्रकार का ये एक्सपो, ये वेबिनार अभी किया जा रहा है, सचिन मनोचा जी को मैं फिर से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। और विशेष धन्यवाद कि उन्होंने हमारा चुनाव किया। आई डोंट नो उनको क्या क्राइटेरिया था, उन्होंने हमारा चुनाव किया कि डॉक्टर वशिष्ठ को बुलाया जाए, डॉक्टर वशिष्ठ और रेमेडीज को पार्टिसिपेट करवाया जाए। तो विशेष रूप से मैंने बहुत ही दिल से धन्यवाद दिया है सचिन जी को और पूरी टीम को कि आप लोग आयुर्वेद के लोग नहीं हैं, आप लोग इंडस्ट्री के लोग हैं, अपने अपने आप के आईटी के लोग हैं, अपना काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आपकी निष्ठा मानवता के साथ, आपकी निष्ठा भारत के साथ इतनी जुड़ी हुई है कि आज आपको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि भारत के इन रिसोर्सेज को हम टैप करें। तो आयुर्वेद उनमें सबसे ऊपर है, आपने ऊपर रखा, हमें पूरा इतना बोलने का मौका दिया, अपने उद्गार व्यक्त करने का मौका दिया। और जो ऑडियंस है, जो व्यूअर्स हैं, सबको धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी देर सुना। पूरी कोशिश की गई कि आयुर्वेद और स्वास्थ्य की पूरी सही पिक्चर आपके सामने रखी जाए। आधुनिक वर्ल्ड में और आने वाले टाइम में क्या होने जा रहा है वो सब कुछ आपके साथ शेयर करें। मेरी कोई इच्छा नहीं थी किसी को पीड़ा देने की। अगर किसी को तकलीफ हुई होगी तो मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन हमने जो बोला है, हम डॉक्टर वशिष्ठ राय रेमेडीज की ओर से पूरी टीम केवल और केवल मानवता के भले के लिए वर्ल्ड क्लास मेडिसिन बना रहे हैं और मानवता के भले के लिए ही हर समय सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से सचिन जी का। श्योर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और हमें जो चीजें नहीं मालूम थी उसके लिए हमें पता चला। और थैंक्स टू ऑल ऑडियंस हु हैव अटेंडेड दिस सेशन एंड just an again want to thank Dr. Vashisht for his presence। जो आयुर्वेदा के बारे में स्टिल कुछ कंफ्यूजन था कि साइड इफेक्ट्स है नहीं है, और जो मेन बीमारियां जिनकी मैं दो की बात करूंगा, एक डायबिटीज जो बहुत ज्यादा है, और दूसरा अगर हम मिडिल एज में या 50 अबव अगर हम जाते हैं, हम अपनी माँ को या पिताजी को देखते हैं तो उनकी प्रॉब्लम आती है कि ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम है। तो वो फिक्स दवाई है उनकी कि उनको जाना ही जाना है, टेस्ट होना ही होना है एवरी 2 मंथ्स 3 मंथ्स। शुगर है तो मेटामॉर्फिन आपको मिलनी ही मिलनी है, और वो जिंदगी भर चलनी है, और कोई इलाज है नहीं उसका। तो आई एम श्योर आयुर्वेदा में कुछ ऐसा होगा। अगर आप 2 लाइन इन दो चीजों के ऊपर बोल सकें तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सचिन जी। बहुत कुछ है आयुर्वेद में, डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी मेडिसिन दी जाती हैं। हालांकि डायबिटीज एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, एक सीमा के बाद पेशेंट का इंप्रूवमेंट थोड़ा कम होता है, लेकिन समस्या क्या है उसको आप समझ लीजिए। ज्यादातर आयुर्वेद चिकित्सकों के पास पेशेंट्स कब आते हैं? जब डिजीज बहुत पुरानी हो गई हो। अगर आज डायबिटीज शुरू हुई और 20 साल के बाद पेशेंट हमारे पास ट्रीटमेंट लेने आएगा तो हम उतनी हेल्प पेशेंट की नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज डायबिटीज शुरू हुई और आज ही वो आ जाता है तो हम एलोपैथी से ज्यादा अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्र में लिखा भी है और पिछले 40 बरस में हमने ऐसा खुद अपनी प्रैक्टिस में देखा है। ऐसा ही होता है। द अर्लियर वी स्टार्ट आयुर्वेदा मैनेजमेंट द बेटर द रिजल्ट्स। उसके बाद आपने डायबिटीज के बाद बात की आर्थराइटिस की। कई प्रकार की आर्थराइटिस होती है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस होती है जिसको हम बात कहते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस होती है जिसमें जॉइंट्स जो है वो घिस जाते हैं, जॉइंट कार्टिलेज, वो खास करके एज के साथ होती है। तो इसमें ये सच बात है कि एक तो लाइफस्टाइल भी ठीक नहीं है, उठने बैठने सोने का काम करने का तरीका गलत होता है, हम अपने जॉइंट्स का मिसयूज करते हैं, गलत तरीके से यूज करते हैं, वो जिम्मेदार होता है। दूसरा, हमारा जो खाना है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत कम होती जा रही है। आपको पता ही होगा कि सॉइल में जिंक बहुत कम हो गई है। जिस तरह से जितनी फसल जो है वो पृथ्वी से जमीन से ली जा रही है तो हम उस रिसोर्स को खराब कर रहे हैं।
तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और उसके साथ कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं कि कई बार हम लोग जिसको आज कहते हैं कि ये रिफाइंड ऑयल्स लिए जा रहे हैं, तो उसमें से विटामिन ई निकाल लेते हैं। तो वो विटामिन ई निकाला हुआ रिफाइंड ऑयल जब लेते हैं, तो विटामिन ई तो वैसे ही हेल्थ के लिए जरूरी होता है। तो इन सब चीजों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके साथ भी रसायन औषधियां आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी हैं, जैसे मैंने अश्वगंधाई कही। तो ये बहुत सारी रसायन औषधियां हैं जो ऐसे जॉइंट पेन्स में भी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हैं। आयुर्वेद चिकित्सक को ही कंसल्ट किया जाना ये ट्रीटमेंट के लिए। उनको आप करेंगे, कोई भी करेगा, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट इन दोनों रोगों का होता है। लेकिन फिर वही रिपीट करूंगा कि जितनी जल्दी कोई ट्रीटमेंट के लिए आएगा, उतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। श्योर श्योर, थैंक यू सर। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके आज के टाइम के लिए कि आप यहाँ पर आए और आयुर्वेदा के बारे में आपने बात की, जो मेरे हिसाब से अभी तक अनटच सब्जेक्ट है। इवन आज की डेट में भी अगर हमें बुखार होता है, सिर दर्द होता है, तो हमें सिर्फ ये पैरासीटामोल ही याद आती है। और आई एम श्योर कि कमिंग टाइम में कुछ ऐसा टाइम आए कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो तो हम आयुर्वेदा की तरफ दौड़ें कि हाँ मुझे ये वाली औषधि लेनी है। तो आई एम श्योर कि वो टाइम भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो कोविड इज द आएगा। स्टार्ट ऑफ न्यू वर्ल्ड, तो आई एम श्योर विल वेलकम दिस न्यू वर्ल्ड विद ओपन आर्म्स। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर आने के लिए। और बाकी दर्शकों से निवेदन है कि हमारे यहाँ पे एग्जीबिटर्स के बूथ सेक्शन में डॉक्टर वशिष्ठ आयु रेमेडीज का भी स्टॉल है, और 30 एग्जीबिटर्स हो रहे हैं, तो आप बूथ सेक्शन में जाके उनसे मिल सकते हैं। क्योंकि कल एक लास्ट डे है हमारे एग्जीबिशन का, और आउट ऑफ बूथ विजिटर्स हम 30 लकी ड्रॉज करेंगे। और बट उसके लिए आपको बूथ पे जाके मीटिंग्स करना जरूरी है, एंड दैट इज द अट्रैक्शन। आपके पास आयुर्वेदा के स्टॉल्स भी हैं, उनके प्रोडक्ट्स के भी हैं, आपके पास होटल्स भी हैं। सो गो एंड लुक आउट। एंड डॉक्टर वशिष्ठ, इफ यू वांट यू कैन गो टू वीआईपी सेक्शन, वहाँ पे आपके लिए रूम रिजर्व है। और किसी को आपसे मीटिंग करनी है तो वहां से आप मीटिंग कर सकते हैं सर। हाँ, मैं आधे घंटे के बाद वहां आऊंगा। श्योर सर, श्योर। सो आधे घंटे के धन्यवाद। बाद डॉक्टर वशिष्ठ विल बी अवेलेबल, अगर आपको उनसे बात करनी है, पर्सनल चैट, वन बाय वन मीटिंग्स आप कर सकते हैं। थैंक यू श्योर सचिन जी, श्योर, थैंक यू थैंक वेरी यू मच। सो मच सर, नमस्कार। थैंक यू, थैंक नमस्कार, बाय बाय बाय। यू।